Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. I am here with the chapter Atomic Structure of class 11th. Today we will discuss about the topic shapes of orbitals. Means what are the shapes of orbitals? As we have discussed earlier that there are four orbitals. There are four subshells S, P, D and F. Today we will discuss about the shape of s orbitals, p orbitals, d orbitals and f orbitals. As you know, s orbitals, s means spherical, p means principal, d means diffused and f means fundamental. So let's discuss with our topic shapes of orbitals. So first of all, we will learn about orbitals. Means what are orbitals? Orbital is defined as space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Means, as we know, in an atom there is a central positively charged which is known as nucleus and electrons are revolving around the nucleus. But electrons are revolving around the nucleus in a shell, in a circular orbit which is known as shell. As we have discussed earlier that in every shell there are a number of subshells and in every subshell there are a number of orbitals, or we can say that in every shells there are a lot of orbitals. There are a lot of orbitals. So हम ऐसे भी बोल सकते हैं orbitals ऐसी स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कैपेसिटी, टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ. लेट अस सपोज मैं बात करता हूँ 11th क्लास का स्टूडेंट. अगर मेरे को पूरे स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट को ढूंढना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 11th क्लास का स्टूडेंट, लेट अस सपोज उसका नाम ए है, तो मैं बोलता हूँ ए जो है वो स्कूल में प्रेजेंट है. बट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास विल बी इन क्लास 11th. मतलब जो 11th क्लास के अगर मैंने स्टूडेंट को ढूंढना है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर मेरे को पूरे स्कूल में उसको ढूंढना है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कहाँ पे मिलेगा, 11th क्लास के अंदर. इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग ऑल द क्लासेस ऑफ स्कूल वी डायरेक्टली गो टू द 11th क्लास. तो सेम इज द केस. ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल. उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल. एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट्स आर शेल्स, and each shell there are a number of subshells. Means electron is present in subshell, and in each subshell there are a number of orbitals. So we can say that the electron is present in orbital. So the maximum probability of finding of electron means कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा टेंडेंसी है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. हालांकि उसको शेल में भी ढूंढ सकते हैं, सब शेल में, बट जहां पे मैक्सिमम मिल सकता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल हो गया स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. सो वी विल डिस्कस अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. एज वी नो, we have discussed earlier that there are four types of orbitals: s orbital, p orbital, d orbital and f. S mean spherical, P means principal, D means diffused and F means fundamental. So these are the four orbitals. We will discuss the shapes of these orbitals one by one. Let us suppose these are the shapes of orbitals. We will discuss it in this video. Now let us talk about shapes of s orbital. As you know, for s orbital the value of azimuthal quantum number is 0, because for s orbital L equal to 0, for p orbital L equal to 1, for d orbital L equal to 2 and for f orbital L equal to 3.
इट वॉज डिस्कस्ड इन द क्वांटम नंबर दैट अगर L की वैल्यू 0 होती है तो हमारा S सबशेल होगा, अगर L की वैल्यू 1 होती है देन P सबशेल होगा, अगर 2 होगी तो D सबशेल, अगर 3 होगी तो F सबशेल। तो हम बात कर रहे हैं S ऑर्बिटल्स की, तो S सबशेल मींस यहां पे L की वैल्यू कितनी होगी? 0। L की वैल्यू क्या होगी? 0। सो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, M की वैल्यू होती है -L टू +L। तो -L हो गया -0 टू +0, तो 0 माइनस नहीं होता, पॉजिटिव 0 नहीं होता, 0 एक ही होता है। तो इसका मतलब M की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब L की वैल्यू 0 थी, M की वैल्यू मतलब फॉर S ऑर्बिटल L इक्वल टू 0 एंड M विल हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0, मीन्स M की एक ही वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो S ऑर्बिटल है उसकी ओनली वन ओरिएंटेशन होगी, उसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी, दैट इज S ऑर्बिटल की। कहने का मतलब हो गया S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 है और M की वैल्यू 0 है। L से हमें यह पता चलता है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बट M से हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दिखाता है कि किसी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन स्पेस में किस तरह से है। अगर M की वैल्यू 0 आ रही है मींस इट हैज ओनली वन वैल्यू, इट हैज ओनली वन वैल्यू, इट मींस S ऑर्बिटल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, इसकी एक ही ओरिएंटेशन होगी। कहने का मतलब हुआ S ऑर्बिटल में आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होगी, बिकॉज इसकी एक ही वैल्यू है। M की वैल्यू 0 है मतलब एक ही वैल्यू है, ओनली वन वैल्यू, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी एक ही वैल्यू आ रही है इट मींस मैं अगर न्यूक्लियस से इस साइड S ऑर्बिटल में मूव करता हूं या इस साइड पे या फिर इस साइड पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सेम। दैट्स व्हाई S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, इसलिए जो S ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल, स्फीयर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट है द एनर्जी एंड साइज ऑफ S ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद वैल्यू ऑफ n। कहने का मतलब हो गया अगर आप फर्स्ट शेल की बात करते हो उसका S ऑर्बिटल छोटा होगा, उसका S ऑर्बिटल छोटा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पास होगा तो S ऑर्बिटल छोटा होगा। अगर आप सेकंड शेल में S की बात करते हो तो बड़ा हो जाएगा, थर्ड की बात करते हो उससे बड़ा हो जाएगा। तो शेल के बढ़ने से S ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है और मोरओवर एनर्जी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट वन, S ऑर्बिटल को रेडियल नोड भी बोलते हैं या मोडल सरफेस भी, मोडल नहीं नोडल सरफेस बोलते हैं, इसको नोडल सरफेस भी बोलते हैं। तो S ऑर्बिटल में देखो नोडल सरफेस क्या हो गया, देखो ऑर्बिटल होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बट नोडल सरफेस, नोड जिसको बोलते हैं नोडल सरफेस हो गया स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिल सकता। उस स्पेस को क्या बोलेंगे, उस प्लेस पोजीशन को क्या बोलेंगे? नोड, उसको क्या बोलेंगे? नोड। और किसी भी ऑर्बिटल में नोड निकालने का फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर मेरे को नोड निकालनी है, कि नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है कि कितनी पोजीशन होगी, जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1s में नोड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1s में क्या हो गया, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर आ जाएंगे? n माइनस l माइनस 1। तो कहने का मतलब हो गया n की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1s में कोई भी नोड नहीं होगी, 1s ऑर्बिटल में कोई भी ऐसी स्पेस नहीं होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल देखिए यहां पे 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहां पे नोड कितनी होंगी? n माइनस l माइनस 1। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो 2s की बात कर रहे हैं, 2s के लिए n की वैल्यू 2 है माइनस l की वैल्यू 0 है, और ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, तो दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब हो गया 2s ऑर्बिटल में नोड कितनी होंगी? सिर्फ एक। 2s ऑर्बिटल में नोड कितने होंगे?
सिर्फ वन, मतलब 2s ऑर्बिटल में एक ही नोड होगी जो हम दिखा रहे हैं। दिस इज द एरिया, जो डॉटेड एरिया है इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, इसको हम बोलेंगे नोड। नोड का मतलब हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको बोलेंगे नोड। और नोड निकालने का फॉर्म होता है n-l-1। तो s ऑर्बिटल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n-1, क्योंकि l की वैल्यू यहां पे 0 होती है। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। एज यू नो, फॉर p ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number is 1, therefore the value of magnetic quantum number will be -1 to +1। अगर azimuthal quantum number की वैल्यू 1 आ रही है, l इक्वल टू 1 आ रहा है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l, -l हो गया -1 टू +1, तो वैल्यू आ गई -1, 0, +1। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो कहने का मतलब हो गया कि p ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, p ऑर्बिटल 3 होते हैं। p ऑर्बिटल 3 होते हैं। कैसे पता चलेगा, बिकॉज m p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 3 आ जाएंगी, +1, 0, -1। इसका मतलब p ऑर्बिटल की m की वैल्यू अगर 3 आ रही है, m इक्वल टू -1, 0, +1, तो p ऑर्बिटल भी 3 होंगे। नाम कैसे देंगे, px, py एंड pz। तो यहां से इसका नाम हम बना सकते हैं, p ऑर्बिटल की कितने टाइप के होंगे। अब p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डम्बेल शेप। डम्बेल आपने देखा होगा, डम्बेल किस तरह से होता है, दिस टाइप, दिस इज कॉल्ड डम्बेल। इसकी 2 लोब्स होती हैं, 1 and 2, एंड दिस इज द पोजिशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसको नोड बोलेंगे। तो इस 2 लोब्स हैं, ये सेपरेटेड बाय 1 नोडल प्लेन, सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन। इसकी डम्बेल शेप होती है, ये हमने डिस्कस कर दिया। और p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। s ऑर्बिटल में m की वैल्यू 0 थी, इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं था। अब p ऑर्बिटल में जो डम्बेल शेप है, अब इसमें 3 वैल्यू है, -1, 0, +1, इसलिए इसकी ओरिएंटेशन होगी, एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। इसकी डायग्राम बता रहा हूं। जैसे अगर कभी जो लोब होगी, जो p ऑर्बिटल होगा, वो x डायरेक्शन में है, ऑन द x एक्सिस है, देन इट इज कॉल्ड px ऑर्बिटल। अगर y डायरेक्शन में है देन इट इज py ऑर्बिटल, और अगर z डायरेक्शन में देन इट इज pz ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। इनके लिए नोडल सरफेस देखो, अब नोडल सरफेस कैसे पता चलेगा, दिस वन, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां पे 2 लोब्स आपस में मिल रही है, यहां पे इनकी जो इन पोर्शन को क्या बोलते हैं, नोड। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, नोड। अब डिपेंड करता है, जैसे 2px की बात कर रहे हैं, तो इसमें नोड कितनी आ रही है, 2 माइनस p के लिए l की वैल्यू होती है 1 -1, तो ये आ जाएगा 2, एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहां पे हम वैल्यू लगाएंगे n-l-1, तो यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, 1, मतलब कितने नोड्स आ जाएंगे इसमें, 1 नोड कितनी आ जाएंगी, 1। तो अगर ये s ऑर्बिटल होता तो नोड 2s में कितनी नोड होनी थी, 1। अब यहां पे कितनी होगी, 1, ठीक। नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में क्या होता है, l की वैल्यू 2 होती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, इसकी 5 वैल्यू होती हैं, इसलिए d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, dxy, dyz, dzx एंड dx स्क्वायर -y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और इन सब की जो शेप होती है, जो d ऑर्बिटल है, उनकी शेप, साइज, एनर्जी सबकी सेम होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं। द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज, देखो p ऑर्बिटल क्या थे, डम्बेल शेप। इसमें क्या होगा, डबल डम्बेल, एक डम्बल इस तरह से, दूसरा डम्बल इस तरह से, 2 डम्बल होंगे इसमें। इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसमें भी डायरेक्शन होगी, जस्ट लाइक ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक्स वाई में क्या करना है, एक प्लेन
जब आपने एक्स वाई लेना है तो आपने क्या करना है, एक्स वाई, मैं आपको सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक लोब एक्स और वाई के बीच में, दूसरी भी एक्स और वाई के बीच में। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब भी एक्स वाई बनाना है तो क्या होना चाहिए, लोब्स बिटवीन द एक्सिस आनी चाहिए। लोब्स, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इन दोनों के बिटवीन आ रही है। तो वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड के बीच में आएंगी, और जेड एक्स में क्या होगा, जो लोब्स हैं वो जेड और एक्स के बीच में आएंगी। लेकिन जब भी बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स है ये वाई, इसमें क्या होगा, जो लोब होंगी वो ऑन द एक्सिस आएंगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसमें जो लोब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस होती हैं, बट डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स में जो लोब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो यहाँ से डी ऑर्बिटल की शेप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, फॉर एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। देखो डी ऑर्बिटल की शेप जो है वो 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको 12th में पढ़नी पड़ेगी, तो डी ऑर्बिटल आप छोड़ भी सकते हैं। तो फॉर एफ ऑर्बिटल्स एल इक्वल टू 3 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। नाम कैसे देंगे, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा एफ एक्स वाई जेड, नेक्स्ट एफ एक्स जेड क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर। तो ये इसके नाम्स हैं, इसके नाम है, तो ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये हम पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास में कि इसके एफ ऑर्बिटल की शेप। हालांकि एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो 12th क्लास में भी नहीं होती, ग्रेजुएशन के सेशन में आएंगी, बट आपको पता होना चाहिए एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं। देखो एस ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1, पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, डी ऑर्बिटल 5, और एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू 0 आ जाएगी। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एम की वैल्यू -1, 0, +1 आ जाएगी। डी की वैल्यू जो होती है एल के लिए 2 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, 1, 2। एंड सिमिलरली एफ के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये 7 होते हैं, ये 5, पी 3 होते हैं और एस 1। तो यही था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नोट्स कैसे निकालनी है, n - l - 1, n - l - 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।